Okay. Also, Vrinda is here. Okay, so in the last session, we discussed about how we can do the alignment of our life, and we discussed how much benefit we can get by just aligning our life at various levels. First level being our core abilities, our swabhav, and then next level. What was the next level of alignment? Who remembers that? Next level of alignment is with our time and purpose. Once we discover what is our true abilities, then what is the purpose of using this true ability? Which is the goal of my life in which I can use this ability? Let's say if I know how to drive and I know how I drive very well, now I need to know where to drive to. So that means we are aligned to our core strength of being a driver, and we are also aligned to the fact where we need to go driving. And the third thing is alignment with the time. Oh, how long will it take for me to be there? How long will I reach Gurgaon if my destination, let's say, is Jaipur? When will I reach to this place? So, time alignment of our life. And then our alignment with our inner core, inner people in our life, then our alignment with the outer world. This is what we are doing. Now, I will quickly move to this book that we started to read, which is a Strength Finder, and in which we discuss that there will be 34 different kinds of talents that we are going to analyze and see where do we belong. And out of the 34, we will pick up 5 of them जिससे हम relate कर सकते हैं. So, Brinda, you can open the. I already sent it this afternoon. Yes, the first trait is of the achiever. तो ये 34 ऐसे अलग अलग टैलेंट्स होंगे. दिस इज द फर्स्ट वन. सो आई रीड. Your achiever theme helps explain your drive. Achiever describes a constant need for achievement. You feel as if every day starts at zero. By the end of the day, you must achieve something tangible in order to feel good about yourself. And by every day, you mean every single day. Work days, weekends, vacations. No matter how much you may feel you deserve a day of rest, if the day passes without some form of achievement, no matter how small, you will feel dissatisfied. You have an internal fire burning inside you. It pushes you to do more, to achieve more. After every accomplishment is achieved, the fire dwindles for a moment, but very soon it rekindles itself, forcing you towards the next accomplishment. Your relentless need for achievement might not be logical. It might not even be focused, but it will always be with you. As an achiever, you must learn to live with this whisper of discontent. It does have its benefits. It brings you the energy you need to work long hours without burning out. It is a jolt that can always count on to get you started on new tasks, new challenges. It is the power supply that causes you to set the pace and define the levels of productivity for your work group. It is the theme that keeps you moving. How many of you feel connected to this? That Radhya, some of us who feel अगर आज कुछ अचीव नहीं हुआ तो पूरा दिन खराब हो गया.
every hour, every minute, every moment we feel that, oh, something is not achieved. And the mind is always racing and trying to achieve something. Hmm? Okay, we'll read further. Melanie K, ER nurse. I have to rack up points every day to feel successful. Today, I have been here only half an hour, but I have probably racked up 30 points already. I ordered equipment for the ER. I have I had equipment repaired. I had a meeting with my my charge nurse, and I brainstormed with my secretary about improving a computerized logbook. So, on my list of 90 things, I have 30 done already. I feel pretty good about myself right now. Ted as salesman, Ted as salesperson. Last year, I was salesperson of the year out of my company's 300 salesperson. I was a salesman of the year out of company's 300 salesperson. It felt good for a day, but for sure, later that week, it was as if it never happened. I was back to zero again. Sometimes I wish I wasn't an achiever because it can lead me away from the balanced life and towards obsession. I used to think I could change myself, but now I know I am just wired this way. This theme is truly a double edged sword. It helps me achieve my goals, but on the other hand, I wish I could just turn it off and on at will. But hey, I can't. I can manage it and avoid work obsession by focusing on achieving all parts of my life, not just work. Is that clear? ये बात समझ में आ रही है कि वो अपनी he the person who is into this kind of a theme, he gets very obsessed about working and obsessed about achieving something all the time. And जब वो अचीव नहीं कर रहा होता है तो उसको बहुत he feels fearful, he feels unhappy about it. So ये डबल एजेड स्वॉर्ड क्यों बोली गई है? क्योंकि एक तरफ तो ये गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, लेकिन एक तरफ हमको ही ये बहुत ज़्यादा थका देती है, बहुत ज़्यादा। आई मीन द पर्सन विशेस कि इसको मैं टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकूं। अब मेरे को ये अचीवर की फीलिंग नहीं चाहिए, ओके आई टर्न इट ऑफ एंड आई कैन टर्न इट ऑन एट माई विल। बट ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका तरीका क्या बताया कि हाउ आई कैन मैनेज इट, not only at the work level, but how I can take this achievement at all walks of my life. आगे मेरे वर्क के अंदर मेरी कुछ अचीवमेंट नहीं हो रही है तो मे बी स्पिरिचुअली मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ या पर्सनली कोई स्किल अचीव लेकर के अचीव कर रहा हूँ या आई एम कीपिंग माई सेल्फ लर्निंग सम स्पोर्ट्स और समथिंग, तो आई एम अचीविंग समथिंग इफ नॉट ओनली एट वर्क लेवल। सो इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। आई कैन मैनेज इट एंड अवॉइड वर्क ऑब्सेशन बाय फोकसिंग ऑन अचीविंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ माई लाइफ, नॉट जस्ट वर्क। So, Sarah L. Writer, this theme is a weird one. First, it's good because you live in pursuit of the perpetual challenge, but in the second place, you never feel as though you have reached your goal. It can keep up, it can keep you running uphill at 70 miles an hour for your whole life. You never rest because there are always more to do. There is always more to do. But on balance, I think I would rather have it than not. I call it my divine resentlessness. And if it makes me feel as if I owe the present everything I have, then so it be. I can live with it, with that. So now you can close this screen, and I would like to know from all of you how many of you relate to this? How many of you feel that you are achiever?
always feel resentless or impatient for achieving something. टाइम हाथ से निकल रहा है. You can raise your hand, thumb. Radhya, you can raise it higher. You really are topmost in this. Yes, निपुण प्रभु. तो हाँ, ये होता है और ये मेरे साथ भी होता है. एवरी डे, एवरी आवर आई फील कि हर हर घंटे की अचीवमेंट लिख लें. रात को सोने से पहले तो लिखना ही है कि आज क्या अचीव किया. व्हाट वाज द वर्थ ऑफ दिस डे टुडे. सो दिस इज समथिंग विच एक्चुअली गेट्स ऑन टू द होल सिस्टम. सो और टाइम वेस्ट नहीं हो पाता. हर वक्त एक अनकंफर्टेबल लगता है जब 1 आवर विदाउट अचीवमेंट निकल जाए तो. So this is one thing, we can't say good or bad, but something which some people have carried with them, just for us to know that this is one of the virtues that out of 34. हम्म. तो ऐसे 5 हमको, जिससे हम बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं, वो टिक करने हैं बाद में. आई मीन इट विल टेक अबाउट 6 weeks for us to complete all these 34 virtues in these sessions, but uh, we can just keep noting somewhere ki I belong to this or I don't belong to this. We can come back to the same page. So I'm not reading this part, ideas for action. This you can all read now. It is all with you in the group. तो इसमें ये आइडियाज बता रहे हैं कि अगर आपका ये आपका नेचर है, ये आपका स्वभाव है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस स्वभाव में अगर आप हैं तो. और जो ऐसे लोग होते हैं उनके साथ में हम कैसे हम काम कर सकते हैं, वर्किंग विद द अदर्स हु हैव अचीवर. ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वालिटी, नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट. या दिस इज एक्टिवेटर. ये भी एक अलग तरह की पर्सनालिटी होती है. When can we start? This is a recurring question in your life. You are impatient for action. You may concede that analysis has its uses or that debate and discussion can occasionally yield some valuable insights, but deep down you know that only action is real. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ज्यादा बातें नहीं करना चाहते, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहते, ज्यादा प्लानिंग नहीं करना चाहते. चलो फटाफट एक्शन लो बस. अच्छा, करना क्या है, व्हाट इज द वर्क दैट वी हैव टू डू, एक्शन करो. तो ओनली एक्शन कैन मेक थिंग्स हैपन. इन लोगों का ये बिलीफ होता है कि सिर्फ एक्शन से ही सब कुछ होगा. ओनली एक्शन लीड्स टू परफॉर्मेंस. वंस अ डिसीजन इज मेड, यू कैन नॉट एक्ट. एक बार अगर डिसीजन ले लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम एक्ट ना करो. Others may worry that there are still some things we don't know, but this does not seem to slow you. कुछ लोग ये सोचेंगे नहीं, अभी एक कुछ क्वेश्चन अभी आंसर नहीं हुए, उसके बाद एक्शन शुरू करेंगे. लेकिन ये जो लोग होते हैं एक्टिवेटर्स, ये वेट नहीं करते, ये इमीडिएटली एक्शन पर निकल जाते हैं. उनकी स्पीड स्लो नहीं होती इस चीज से कि पूरी 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 इंफॉर्मेशन नहीं भी मिली है, देन ऑल्सो दे विल इमीडिएटली स्टार्ट and get into the action mode. If the decision has been made to go across town, you know that the fastest way to get there is to go stoplight to stoplight. You are not going to sit around waiting until all the lights have turned green. You're not waiting कि सब कुछ रेडी हो गया हमारे पास में, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल नाउ, अब स्टार्ट करते हैं. नो, जितना जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है वहां तक हम काम शुरू कर देंगे. ओके, इतना हो गया ना, इतना करते हैं, इतना हो गया, इतना करते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो. तो these people are activators, are great initiators. स्टार्टिंग बहुत स्ट्रांग करते हैं ये. Besides, in your view,
एक्शन एंड थिंकिंग आर नॉट ऑपोजिट्स। अब यहां हम सीखेंगे कि वो लर्निंग भी एक्शन करके ही करते हैं। इन फैक्ट, guided by your achiever guided by your activator theme, you believe that action is the best device for learning. You make a decision, you take action, you look at the result and you learn. तो हम क्या करते हैं, एक्शन कर डिसीजन लेते हैं, एक्शन करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, उससे लर्निंग करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले लर्निंग कर ली उसके बाद एक्शन लेंगे। नो, उसी प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ एक्शन, वी आर लर्निंग व्हाट वर्कड, व्हाट डिड नॉट वर्क। सो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। जैसे महाराज कहते हैं ना, परिणामवादी नहीं होना, कर्मवादी होना है। तो ये बहुत कर्मवादी है, एक्शन एक्शन एक्शन। दिस लर्निंग इन्फॉर्म्स योर नेक्स्ट एक्शन एंड योर नेक्स्ट। तो जो भी लर्निंग मिली उससे फिर नेक्स्ट एक्शन अब क्या लेना है, उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद क्या लेना है, ये हमारा माइंड चलने लग जाता है। हाउ कैन यू ग्रो if you have nothing to react to? Well, you believe you can't. You must push yourself out there. You must take the next step. It is the only way to keep your thinking fresh and informed. The bottom line is this: you know you will be judged not by what you say, not by what you think, but by what you get done. है ना? दिस डज नॉट फ्राइटन यू, इट प्लीजेज यू। जब कोई लोग कहते हैं कि किसी किसी को डर लगता है ये सुन करके कि यू विल नॉट बी जज बाय व्हाट यू से, यू विल नॉट बी जज बाय व्हाट यू थिंक, बट यू विल बी जज बट व्हाट यू बाय व्हाट यू हैव गॉटन डन इन योर लाइफ। तो लोग डर जाते हैं कि अरे इतना कुछ करना पड़ेगा। तो लेकिन ये जो लोग होते हैं एक्टिवेटर्स, ये डरते नहीं हैं। दिस डज नॉट फ्राइटन देम कि हमें एक्शन करके चीजों को अचीव करके एक्टिवेट करके उसके बाद ही लोग हमें जाने, उससे पहले नहीं। तो दे आर वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस थॉट। ओके, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये एक एग्जांपल था, मेरे को रेलेवेंट नहीं लगा। इसमें भी फिर आइडियाज फॉर एक्शन आ जाते हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। पेजेस फिनिश। हाँ, पेज फिनिश हो गए। सो अब आप लोगों की बारी। एक्टिवेटर और अचीवर, इसके बारे में क्या किसको समझ में आया और कौन रिलेट कर पा रहा है? अचीवर तो हमने डिस्कस किया था। अभी एक्टिवेटर कौन कौन रिलेट करता है अपने आप को कि मैं एक्टिवेटर हूँ? मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ आप लोगों में से। थोड़ी सी है, हाँ। और रेनू तो 100% है। कोई बात हम बोलते हैं उससे पहले एक्शन होके रिजल्ट सामने आ जाता है। और कौन कौन है एक्टिवेटर्स जो इमीडिएटली इंस्टेंटली एक्ट करते हैं, जिनको ये बिलीफ है कि एक्शन ही सब कुछ है, बातें मत करो, बताओ काम क्या करना है? हम रिलेट कर सकते हैं ना इन चीजों से कि हाँ ये चीजें कुछ को, हाँ ये सानवी भी, सानवी सिंह, शी इज ऑल्सो लाइक एन एक्टिवेटर। सुबह इज ऑल्सो लाइक दैट। सुबह डजंट थिंक सो मच, शी जस्ट इमीडिएटली कीप डूइंग डूइंग डूइंग, डे नाइट वर्क हार्ड एंड कीप डूइंग थिंग्स। सो दीज आर ऑल 34 आर गुड क्वालिटीज ओनली। तो बस हमें पहचानना है कि क्या चीज हम लेके आए हैं इनमें से, क्या चीज से हम डीपली रेजोनेट करते हैं। नाउ एनीबडी, you should speak. This Wings Academy, as I said before, is more conversational. So please go ahead and speak what you learned so far. Anyone? No one? जो भी थॉट्स आने शेयर करो। Sorry, Yes, yes, go ahead, go ahead. I had one question for the हम्म sake. हम्म See, ये जो 34 स्ट्रेंथ्स हैं, उस हम्म कुछ कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी कुछ कुछ लोगों की, और जो नहीं होंगी दूसरी वो तो वीकनेसेस होंगी। तो
आई फील दैट ये जो स्ट्रेंथ है मेंशन्ड, बट वो मेरी वीकनेस है। ओके। बट ये एक स्ट्रेंथ लग हम्म। रहा है सब में होनी चाहिए, तो ये कैसे समझे? मतलब लास्ट टाइम लास्ट टाइम लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था ना, आप अपनी जो आपको वीकनेस लग रही है ना, अ, उस पर आपको ज्यादा काम नहीं करना। बट ये तो एक चीज सब में होनी चाहिए ना आप कि 34 की 34 ऐसे लगेंगी, सारी ऐसे लगेगी, तो मेरे अंदर होना ही चाहिए, ये तो मेरे को डेवलप करना है अपने अंदर। सारी 34 बड़ी अच्छी क्वालिटीज हैं, बट वी आर नॉट ब्लेस्ड विद। फॉर एग्जाम्पल, एक एक स्पोर्ट्समैन है जो फुटबॉल खेलता है, और उसको लगता है कि टेनिस तो मुझे आना ही चाहिए, या मुझे म्यूजिक तो मुझे आना ही चाहिए, सिंगिंग तो मुझे आनी ही चाहिए, तो मस्ट है। लेकिन वो नहीं हो सकता। अनलेस ही फोकसेस ऑन वन स्पोर्ट, ही विल नॉट बी सक्सेसफुल और पीसफुल, है ना। तो सारी चीजें अच्छी हैं, स्पोर्ट्स भी अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है। आई एम एक्चुअली सेंडिंग यू समथिंग alongside। तो अभी आप 34 जब पूरे कर लोगे ना, और जब आपको लगेगा कि ओ बहुत सारी तो मेरी बात हो रही है, तो फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे को ये भी चाहिए। तो यू विल फील वेरी हैप्पी कि हाँ, 5 तो बहुत अच्छी मेरी स्ट्रेंथ्स की बातें भी की है इन्होंने। यस वृंदा। हरे कृष्णा। मेरे को अचीवर और एक्टिवेटर में बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस नहीं समझ में आया। मतलब अगर कोई एक्टिवेटर होगा तो ही वो अचीवर हो सकता है। मतलब डिफरेंस अच्छे से समझ। मुझे भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया अच्छे से, या ये इसका एकदम क्लैरिटी से नहीं आया, तो मैंने फिर चैट जीपीटी को यूज किया थोड़ी देर पहले इनका डिफरेंस समझने के लिए। आई विल शेयर दैट आउटकम विद यू। पर उससे पहले मैं कुछ और भेज रहा हूँ ग्रुप पे। मतलब बड़ा ही सटल डिफरेंस है। विल विल लीड विल गो थ्रू दैट, बट आई एम सेंडिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट गो थ्रू दैट नाउ, यू जस्ट ओपन दैट मे बी। हाँ। मतलब ऐसा होता है कि ऐसा मुझे होता है कि यस आई वांट डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, आई वांट टू एक्ट, बट इतना भी नहीं कि बात मत करो काम। मतलब थोड़ा तो होता है कि हाँ लेट मी थिंक एंड देन वर्क, बट ऐसा मतलब पता नहीं, कंफ्यूज। आई रीड अचीवर एंड एक्टिवेटर। इसमें जो कोर फोकस होता है अचीवर का, ही वॉन्ट्स टू अकम्प्लिश थिंग्स, गेट टास्क डन, मीट गोल्स एंड फील प्रोडक्टिव एवरी सिंगल डे। वो प्रोडक्टिव फील करना चाहता है, ठीक है। वो क्या कहता है, इफ आई डोंट अकम्प्लिश समथिंग टुडे, आई फील इनकम्प्लीट। और जबकि एक्टिवेटर का क्या होता है, ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट थिंग्स, किक ऑफ द प्रोजेक्ट्स, लॉन्च न्यू आइडियाज एंड गेट पीपल इन टू एक्शन। वो क्या कहता है, why are we still talking? Let's do something about it. So, activator is an initiator, but achiever is somebody who wants to feel productive all the time. So, very close again, but अभी आप सारे पॉइंट्स सुनोगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। इन दोनों की एनर्जी कहाँ से आती है? एक्टिवेटर की एनर्जी आती है, एक्टिवेटर फील्स एनर्जाइज्ड बाय कंप्लीटिंग टास्क्स। वो फिनिश करना जानता है। दे लव टिकिंग ऑफ चेकलिस्ट। जैसे हमने सुना ना, वो बोलती है कि 30 मैंने एक आधे घंटे में 30 चीजें टिक कर दी हैं। टिक करने का मतलब है कंप्लीट हो गया। जो अचीवर्स होते हैं, वो अचीवमेंट जब फील करते हैं अपनी, जब वो टिक कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं किसी को, दे नो देयर फिनिशिंग लाइन। वी शुड ऑल नो आवर फिनिशिंग लाइन। जब भी हम किसी काम को ओपन कर देते हैं, ओपन करके टेबल पे डाल देंगे, आज भी ओपन कुछ कर दिया, कल भी ओपन कुछ कर दिया, कई बार ऐसी हैबिट बन जाती है, तो हम हमें ये नहीं पता होता कि इस टास्क का फिनिशिंग लाइन क्या है। व्हेन कैन आई से दैट दिस जॉब इज फिनिश्ड? तो इन लोगों को पता होता है, अचीवर्स को, इनको इंट्यूटिवली पता होता है अब ये काम खत्म हो गया, टिक कर दिया। एंड दे स्टार्ट देयर डे थिंकिंग, व्हाट डू आई नीड टू गेट डन टुडे। इफ इफ दे एंड द डे विदाउट प्रोग्रेस, दे फील अनईजी।
और एक्टिवेटर क्या करते हैं? एक्टिवेटर फील्स एनर्जाइज्ड बाय टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। वो बहुत स्टार्ट करने में बहुत विश्वास रखते हैं। स्टार्ट करके हो सकता है उनका टेम्पो लूज हो जाता है बाद में। ऐसे लोग होते नहीं है जो कोई चीज को, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैंने गीता एकेडमी स्टार्ट कर दिया, रेनू ने उसको आगे बढ़ाया। जब एकेडमी स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद एक्टिवेट करके somebody टेक्स इट अप। सो ये क्वालिटीज अलग अलग हैं दोनों। Activator feels energized by taking the first step. They don't want to sit in long meetings or overthinking. They want to move. They believe that action creates clarity. तो फिर है इनका मोटिवेशनल ड्राइवर कौन सा होता है? अचीवर्स का क्या होता है? दे आर ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इंटरनल नीड फॉर हार्ड वर्क एंड बी प्रोडक्टिव। दे ऑफन वर्क longer than others, not because they have to, but because they enjoy process, they enjoy progress। ऐसे है ना हम में से कुछ लोग जो लंबे लंबे आवर्स तक काम करते हैं, इसलिए नहीं कि कोई उनको बहुत बोल रहा है कि ऐसा करना ही है आपको, लेकिन उनको खुद को अंदर से ड्राइव मिलती है, मोटिवेशन मिलती है देर तक काम करने की, क्योंकि उनको ग्रोथ की फील बहुत स्ट्रांग होती है उनके अंदर। दे जस्ट लव टू सी दैट फीलिंग ऑफ प्रोग्रेस। Activators, on the other hand, they are driven by the need to see things happening. They want to see the action happening. If a group is stuck in talk or overthinking, the activator gets frustrated. ऐसे होते हैं ना, कितनी देर तक तुम बातें करते रहोगे, प्लानिंग करते रहोगे, काम करो, करना क्या ये बताओ बस। तो ये एक्टिवेटर्स होते हैं। They want movement, they want momentum and responsiveness. They want to move the things. फिफ्थ पॉइंट है अचीवर्स का जो ऑन ए टीम, अचीवर्स का रोल होता है द रिलायबल इंजन, कीप्स द टीम मूविंग फॉरवर्ड थ्रू कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। ये अचीवर्स होते हैं। समवन यू कैन काउंट ऑन टू फिनिश व्हाट दे हैव स्टार्टेड। अगेन वही बात आ रही है कि वो जो स्टार्ट करते हैं उसको फिनिश करते हैं। लेकिन एक्टिवेटर क्या करते हैं? इट्स अ कैटलिस्ट, गेट्स थिंग्स मूविंग, energizes the group, brings urgency to action। वो अर्जेंसी ले आते हैं। someone who gets people to stop waiting and start doing। तो in summary, achiever is a finisher motivated by doing more consistently, and activator is a starter, he is not a finisher, he may not finish, he wants to start। he start motivated by starting fast, उसकी मोटिवेशन जल्दी स्टार्ट करो, एंड पुशिंग अदर्स टू एक्ट। तो दोनों में यही फर्क है अचीवर और एक्टिवेटर में। आई विल सेंड दिस आल्सो। ओके, बट बिफोर दैट वी कैन, I want to share with you something important. I'm not taking more qualities today. We can take next time maybe 4 or 6 qualities. But what I want to share with you is all of this that we are learning will go inside our brain cells only when we do deep meditation, anuchintan on what we are learning. So this is very important. The whole process of absorbing the knowledge is more important than the knowledge itself। So as I always say, जैसे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि हमने ट्रेन की जाके टिकट तो खरीद ली, लेकिन उसके बाद घर पे आके तकिए के नीचे रख करके टिकट को सो गए, तो it will not help us। Same way, we need to travel this journey of knowledge। It needs to go inside us. It needs to become a part of us, so that when next time we take a decision, when next time we think about anything, this becomes our color. This knowledge becomes our color. If this knowledge is of, let's say, yellow color, then this yellow color has gone inside us now. We have become yellow from inside. So this is how we need to drink this knowledge so that it can bring transformation in us। So, and this is not related to this knowledge, this is related to any knowledge that we acquire। We need to know how to acquire knowledge, how to absorb this knowledge within us। This is the key point, because
बहुत नेचुरली आज की डेट में हम एक बार सुन करके बातें हमारे माइंड पे स्टक हो जाएंगी, कल से हम उस पर डिसीजन लेने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी आर टेकिंग एवरी डे। सो उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, अगर हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि हमारी लाइफ पूरी ब्रोकन है, फोन के जैसे है, एक ब्रोकन फोन के जैसे है, और हमें पता ही नहीं है कि हमारी अलाइनमेंट्स होनी है, हम डिसइंटीग्रेटेड है। और अगर हमें ये पता लग रहा है कि हमारी अलग अलग लेवल पे इंटीग्रेशंस होनी है, और उसके बाद हम लोग बहुत फंक्शनल हो जाएंगे। अभी ये लाइफ बहुत डिसफंक्शनल है, और हमारी लाइफ फंक्शनल हो जाएगी, और वो सारी स्ट्रेंथ्स जो हमें फंक्शनल करेंगी, वो सारी हमारे अंदर ही है, हमें कहीं बाहर से भी नहीं लानी। इट्स टोटली विद इन अस। ऐसा भी नहीं सोचना कि हमें कोई स्पॉन्सर कर देगा तो वो वाला कोर्स हम कर लेंगे या उस यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे लाइफ में। ऐसा भी नहीं, एवरीथिंग इज विद इन अस, खाली वो डिसइंटीग्रेटेड है हमारे साथ में। तो उसको इंटीग्रेट करना, यही हमारे को आ, कितना बड़ा काम होगा, जो हमारे स्कूल ने भी नहीं किया, जो हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं किया, जो हमारी सोसाइटी ने भी नहीं किया, है ना। कहीं से भी नहीं मिला ये इंटीग्रेशन हमें, हमारी मास्टर्स भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये भी हमारे स्क्रिप्चर्स का पार्ट भी नहीं था इंटीग्रेट करना। आप सोच के देखिए, हमारी ये इंटीग्रेशन कहीं पे भी नहीं हुई, फुल इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारी यूनिक एबिलिटीज पहले गुरुकुल में होता था ये। पहले गुरुकुल में महाराज बता रहे थे कि सबसे पहले जो गुरु होते थे, वो ये देखते थे कि इसका स्वभाव क्या है। लेट्स से पहले, सबसे पहले उनको बैगिंग के लिए भेजते थे सबको, तो बैगिंग से पता लगता था, अगर कोई क्षत्रिय है तो बैगिंग नहीं कर सकता, और अगर कोई ब्राह्मणिकल है तो बड़े इजीली बैगिंग कर लेगा। तो उससे उसका स्वभाव पता लगता था। तो बिफोर दे वुड टीच एनीथिंग, दे वुड एक्चुअली गिव दिस। लेकिन अब हमारे पास तो वो मास्टर्स ही नहीं है, हमारे पास वो टीचर्स ही नहीं है, मतलब हमने गुरुकुल नहीं किया इसलिए, हमारी तो इंग्लिश एजुकेशन हुई है सारी। तो इसलिए ये जो नॉलेज है, अगर ये हो गया, अगर हमारा इंटीग्रेशन हो गया, तब तो भाई बहुत कुछ मिल जाएगा लाइफ में। तो ये इंटीग्रेशन, अगर हम बहुत सीरियस हैं इस इंटीग्रेशन के लिए, जिसके लिए विंग्स एकेडमी बना है, तो हमको इस नॉलेज को एक्वायर करने का तरीका बहुत बहुत डीपली देखना होगा। जितना डीपली उसको देखेंगे, जितना इस पे मेडिटेट करेंगे, जितना इसको एब्जॉर्ब करेंगे, कानों से सुना, आंखों से देखा, फिर अंदर उतारा, ब्रेन सेल्स में गया, माइंड में गया, डिसीजन मेकिंग उससे चेंज होनी शुरू हो गई। ये सब करने के लिए क्या करें, है ना। जिस जिस चीज के ऊपर हमने ऐसा अनुचिंतन कर लिया, वो चीज हमारे अंदर चलेगी, वैसे वैसे हम बनते जा रहे हैं। लेकिन ये तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म। सो इसलिए आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू वन फ्रैक्शन ऑफ द नोट्स दैट आई मेड, कि इस इन चीजों के हम कैसे इसको अनुचिंतन कर सकते हैं। तो प्रिंदा, कैन यू स्टार्ट दैट। मैंने अभी 11 शीट्स भेजी हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट, एंड दिस इज व्हाट आई रोट, बिकॉज body, mind, and soul. But unfortunately, all these are not fully aligned. I'm carrying some unique abilities as per my psychophysical nature, but I am not aware of that. मुझे पता ही नहीं है मेरी psychophysical nature है क्या। I am 52 years, 51 years old, and I don't know even now मेरा psychophysical nature है क्या। I struggle to find that. So, but I'm not aware of that. Hence, my actions are not aligned to my true nature और my unique abilities. अब मैं जो करता हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी ये यूनिक एबिलिटी मेरी यही है क्या। आई डोंट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू वेट टिल 50 years ऑफ एज टू, हमें तो कोई मिला ही नहीं हमारी पूरी लाइफ में ना बताने वाला ये सब। Nobody was there to teach us the strength finder। इसका कोई डॉन क्लिफ्टन जिसने 50 साल इसी में लगाए हैं सिखाने के लिए, और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद ये, हमें तो नहीं पता हमारी लाइफ में किसी, ना हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, ना सोसाइटी ने, ना किसी टीचर ने, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो इसलिए हम लोग नहीं निकाल पाए अपनी स्ट्रेंथ।
unique ability. Once I'm aligned with my unique abilities, my swabhav, I will be able to function properly and make some contributions to this planet. Example of phone is very good. If I unscrew my mobile phone, then unscrew my mobile phone, take out all its parts and keep them separate on a table, it will not function. है ना? But once all these parts are aligned, it functions properly and my phone can do wonders. Like this phone, probably my parts are also not aligned. मेरे अंदर के इंटरनल पार्ट्स, मेरा मन, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी soul, my all my different needs of my life, they are not aligned properly. Once once I'm able to align these, I can do so, I can do wonderful tasks, feel more confident, get greater positivity, and see my life purpose. Next page. Then I started to write कि मैंने क्या सीखा. Alignment number one is my psychophysical nature. I've come to realize that there is a need for alignment at many levels in my life. The first and the foremost important is the alignment of my inner strength with my outer actions. Again, alignment of my inner to outer. Right now, I find myself doing things every day, but they are not fully aligned to my core unique abilities. To live more purposefully, I must first explore and discover these unique abilities and then shape my daily actions around them. The Japanese call this sense of alignment ikigai, a state where I do what I'm passionate about, I use my natural talent, I offer something the world truly needs, and I can sustain myself while doing. This alignment is the foundation of a life of meaning and impact. तो हमने पहले ये सीखा कि सबसे पहली अलाइनमेंट हमारी हमारी अपनी यूनिक एबिलिटी, हमारा स्वभाव से है कि हमारा रियल स्वभाव क्या है, हमारा रियल स्किल क्या है जो हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं. नेक्स्ट अलाइनमेंट, alignment 2, this is time and purpose. Once my physical nature, my unique blend of inner strength and my natural abilities is aligned with my daily actions, the next step is deeper, aligning these actions with my life purpose. I must now ask myself, where will my unique abilities take me? What is the ultimate goal? What I that they are meant to serve. मेरी यूनिक एबिलिटीज क्या गोल, क्या पर्पस, क्या गोल सर्व करेंगी. व्हाट इज दैट डेस्टिनेशन ट्रूली मीनिंगफुल, और जहां वो जाएंगे भी हम उनको लेकर के, क्या वो डेस्टिनेशन सही है. हु एम आई अकाउंटेबल टू फॉर दिस जर्नी. ये सब किसके लिए कर रहा हूं मैं ये. तो ये पर्पस सॉल्व करना, पर्पस को, अपनी यूनिक एबिलिटीज को पर्पस से अलाइन करना. पर्पस गिव्स डायरेक्शन टू द एक्शन. Without a clear purpose, even the best use of talent can become scattered. कितना भी हम लोग का अच्छा टैलेंट हो गया तो गलत डायरेक्शन में भी तो यूज हो सकता है वो सारा टैलेंट, है ना. मान लो कोई स्पोर्ट्समैन है, अभी एक स्पोर्ट्समैन पूरा लाइफ खेलता है, खेल करके अपनी ईगो को बूस्ट करता है, लेकिन कोई पर्पस तो नहीं था उसका. तो उसका स्किल तो बहुत अच्छा था, टैलेंट तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसने यूज किस चीज के लिए किया, कोई डीप पर्पस नहीं था उसके पास में. बट वंस आई डिस्कवर व्हाई एम आई हियर, आई कैन बिगिन टू स्ट्रक्चर माई लाइफ अकॉर्डिंगली. अगर मुझे पर्पस पता लग जाए तो मैं अपने टैलेंट को पर्पस से अलाइन कर सकता हूँ. जैसे किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं सपोज, तो वो उस कम्युनिकेशन स्किल को अलाइन करे कि मुझे दुनिया को कम्युनिकेट क्या करना है जिससे दुनिया चेंज हो सके. व्हाट इज अ पर्पस दैट इज रियली मीनिंगफुल. उस मीनिंगफुल पर्पस से फिर अपनी यूनिक एबिलिटी को हम अलाइन करते हैं. थर्ड थर्ड नहीं है, सेकंड का ही पार्ट है. दैट मीन्स अलाइनिंग माई डेली स्केड्यूल, the hours, the days, the precious moments I have on this planet with the. तो अब इसके बाद हम, एक पेज रह गया शायद बीच में, टाइम से अलाइनमेंट करना है हमने. मे बी आई मिस टू सेंड एनीवे. तो अब जो हमारा टाइम है, उस टाइम के साथ हम लोग को कैसे अलाइन करना है. हमारा पर्पस अलाइन हो गया,
हमारा कोर एबिलिटीज अलाइन हो गया। नाउ आर वी अलाइंड कि इस पर्पस को कितने टाइम में क्या अचीव करना है? डू वी हैव ए क्लियर डेली स्केड्यूल? डू वी नो एग्जैक्टली मेरा कैलेंडर कैसा दिख रहा है अगले एक हफ्ते का, एक महीने का? टू लिव विद द पर्पस इज टू लिव विदाउट डिस्ट्रैक्शन एंड डिविएशन, to live each hour as a step towards something greater than myself. Next, अलाइनमेंट 3 जो हमने देखा कि ये हो गया हमारा, पर्पस से हो गया, टाइम से हो गया, हमारी कोर स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन अब हमारे घर के अंदर इतने सारे दुश्मन बैठे हैं हमारे, जो हमें हमारे पर्पस की तरफ बढ़ने नहीं देते, है ना? हमारे, तो ये कौन है? आई हैव कम टू रियलाइज दैट दे आर सम की पीपल इन माई लाइफ, my master, my parents, my brother, my friends, who deeply influenced my journey. They are all my well wishers. Yet, many times I find myself in emotional turmoil. Not because they are bad, but because of a misalignment between us. होता है ना फैमिली के अंदर, हम लोग सब, हमारा वो उनका अच्छा देखने का तरीका अलग होता है, हमारा अलग है। हम लोग अपनी कोर एबिलिटी से, अपने पर्पस से अलाइन हो गए हैं, उन लोग को वो पर्पस समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ये गैप्स हम सब लोग फील करते हैं, हमारी फैमिलीज में हो जाते हैं। Our thoughts, temperaments, and visions may differ, and this disconnect can create friction. It distracts me, slows me down, and at times pulls me away from my purpose. I now see that one of the most important alignments I must cultivate is with these inner circle people, inner circle relationships. कितना इंपॉर्टेंट है, हमें हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बाद भी जब तक हमारी फैमिली के साथ, हम लोग और फ्रेंड्स के साथ अलाइनमेंट नहीं होंगे, हमारे गुरु के साथ अलाइनमेंट नहीं होगी, जो वो भी यही चाहते हैं, जब सारे अलाइनमेंट, आई एम डूइंग व्हाट माय स्पिरिचुअल मास्टर वांट्स, आई एम डूइंग व्हाट माय फैमिली इज वेरी हैप्पी अबाउट, आई आई ऑल माय फ्रेंड्स आर अप्रिशिएटिंग व्हाट आई एम डूइंग, देन यू आर फ्री टू डू दैट। कोई बैगेज नहीं है, कोई बाइंडिंग्स नहीं है फिर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिबरेट अवर सेल्स फ्रॉम दीज बॉन्डेजेस। I must learn how to stay rooted in my nature while also living harmoniously with them. If we could move as one in thought, in energy, in vision, how much more peaceful, purposeful, and powerful the journey would become. है ना? जब सब घर वाले एकदम अलाइन हो जाएंगे हमारे साथ में, जितना हमारा इनर सर्कल है, घर वाले ही नहीं, बाकी भी जितने, जिसको हम लोग अपनी लाइफ का कोर कोर पीपल मानते हैं, इनर सर्कल मानते हैं, उन सबको हमें अलाइन करना है। दे शुड नॉट फंक्शन अगेंस्ट अस, दे शुड ऑलवेज इंस्पायर अस इन दिस डायरेक्शन, है ना? नेक्स्ट, तो वो भी हमारी अलाइनमेंट नहीं, अलाइनमेंट 3, तो वो भी हमें करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कैसे की जाती है फैमिली से अलाइनमेंट। फिर अलाइनमेंट 4, चलो अलाइनमेंट 3 भी हो गई, फैमिली के साथ भी जुड़ गए। वंस माई यूनिक एबिलिटीज आर अलाइन टू माई लाइफ पर्पस एंड माई टाइम स्केड्यूल and all my inner circle is also aligned with me, it's time to now align myself with the outer world. Outer world, अब सब कुछ अलाइन हो गया तो करना क्या है? आई एम हियर टू ब्रिंग ए चेंज। हमें कुछ चेंज लाना है, यही तो। अदरवाइज हम सब कुछ अपनी कंजम्पशन के लिए तो आए नहीं कि हम कंज्यूम करेंगे सब कुछ। हमें कंज्यूम नहीं करना, हमें कुछ ना कुछ तो चेंज लाना है, कुछ ना कुछ तो लोगों को सर्व करना है, देना है अपनी, जो भी कुछ हमारे पास है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा नो पर्पस इज सॉल्व विदाउट गिविंग। नो रियल डीप पर्पस इज सॉल्व विदाउट वी गिव टू समबडी। सो अगर हमें देना है, आई एम हियर टू ब्रिंग ए चेंज, इफ दैट सो, आई नीड टू नो हाउ टू रीच आउट टू द पीपल ऑन दिस प्लानट। अब हमें यही पता लगना चाहिए, लोग तो बहुत हैं यहाँ पे, 9 बिलियन, 10 बिलियन, soon 10 billion people are there, but how to reach out to them? I need to learn how to create content, how to communicate, how to do the content marketing and so on. अब ये भी सीखना पड़ेगा, how to become a great orator, है ना? ये सब, ये भी नॉलेज का पार्ट है, ये भी स्किल है एक, है ना? आई नीड टू लर्न हाउ माई वॉइस कैन रीच आउट टू मिशंस, नो मिलियंस था, सॉरी, ये रीच आउट टू मिलियंस एंड बिकम ए सोर्स ऑफ पॉजिटिव चेंज। तो these were the learnings, but after the learnings we need to realize, एक बार अपनी आंखें बंद करके हम लोग उसको थोड़ा इंटरनलाइज करते हैं, डीपली सोचते हैं कि ये क्या बात हमने अभी करी है, कि मेरी कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, यानी कि मुझे कोर अलाइनमेंट भी मेरी मिसिंग है।
मेरी इनर टू आउटर में अंदर से मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है मुझे वो भी नहीं पता, और मेरी अलाइनमेंट मेरी फैमिली से भी नहीं है, मेरी अलाइनमेंट मेरे पर्पस से भी नहीं है, मेरा डेली स्केड्यूल भी किसी पर्पस से अलाइन नहीं है। कितना स्कैटर्ड, कितना फ्रेगमेंटेड थॉट है ये, कि ये मेरी रियलिटी है। अगर ये रियलिटी है तो इसको रियलाइज करें हम लोग। तो इसको रियलाइज कैसे करने के बाद क्या वर्ड आता है? इज माई लाइफ लाइक ए ब्रोकन फोन विच इज नॉट फंक्शनिंग? क्या ऐसा ही है कि इसमें से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही, ये आवाज कहीं जा ही नहीं रही है? हम्म। लेकिन इसको डीपली रियलाइज करना है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ माई लाइफ नीड्स टू बी अलाइंड? कितने पार्ट्स हैं ये जो नीड, इनकी इनकी अलाइनमेंट की जरूरत है? व्हाट इज माई रियल स्ट्रेंथ? इज दिस एनविजनिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और व्हाट? ये आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। What could be a life if I only work with my strengths? Possibly I can contribute 10x more. अभी तो स्ट्रेंथ भी चल रही होती है पूरे दिन के अंदर, वीकनेस जो हमारे वीक एरियाज हैं वो भी, उस पर भी काम, उसके ऊपर भी हम एक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें पता ही नहीं हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो हम लोग फुली स्ट्रेंथ्स में तो काम ही नहीं कर पाते। हाउ डू आई मेक अ परफेक्ट कैलेंडर टू 10x माई लाइफ? व्हाट इज टाइम ब्लॉकिंग? व्हाट इज टाइम बॉक्सिंग? व्हाट इज 80-20 प्रिंसिपल? ये सारे क्वेश्चंस अंदर रियलाइज होते हैं। ये सारा तो मैंने कभी तो पढ़ा था, लेकिन ये सब टाइम तो मेरा निकले जा रहा है, और हम तो इनको स्टडी नहीं कर रहे हैं दोबारा, टाइम को प्लान ही नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। तो ये रियलाइजेशंस आनी चाहिए कि दैट आई नीड टू स्ट्रेंथन माई सेल्फ। सो व्हाट अबाउट alignment with time, purpose, inner people, and outer world? There is so much to align, and I have never been aware of the fact that I am just a non-functional broken phone, contributing nothing to the world in spite of having all superpowers within me. And next, and those superpowers can come out only by alignment. They are all sitting in pieces within me. We just need to align them. जैसे कि फोन के पार्ट्स टेबल पे रखे हैं, बस उनको अलाइन करके पैक करना है। Wings Academy for me is not a platform to teach, it's a platform to learn. Thanks to these young boys and girls, that I'm going through my strength realization. So, this is all thanks to all of you, which I realized today that ये कोई मेरे लिए टीचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म है, where I can learn because of all of you that what is my real strength. So, this is what I realized deeply today. And what do I know? What I do? What should I do as a transformation? Once we know what is the learning and what is the realization, we need to know how do I change myself. I'll take Wings Academy with utmost sincerity, where there is a hope to get my life aligned. आप सोचिए, अगर मैं आज ये विंग्स एकेडमी बंद कर दूं और आप लोग नहीं हो, तो मेरा भी वही हाल होगा। कौन है जो मुझे पकड़ के मेरी लाइफ को अलाइन करने वाला है? कौन है जो मेरे को सिखाएगा कि ये 4 पार्ट्स में लाइफ? अब ये 4 नहीं है, 10 हैं। ये जो मैंने आपसे 4 डिस्कस किए हैं, इसके बाद और डीप में जाएंगे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, फिर बाद में गॉड, गॉड से अलाइनमेंट भी है लास्ट। बट गॉड से अलाइनमेंट होने के लिए पहले बाकी बहुत सारी चीजें अलाइन होनी होगी। हमारे माइंड से अलाइनमेंट है, हमारे इंटेलेक्ट से अलाइनमेंट है, हमारी कंपैशन से अलाइनमेंट है, हमारी सोल से अलाइनमेंट है, हमारे डिवाइन गॉड कृष्णा से अलाइनमेंट है। तो जैसे जैसे हम डीप जाएंगे, तो ये जो यूनिक एबिलिटी है, ये फर्स्ट लेवल की है, ये सबसे कोर्स है, सबसे आउटर है, ये हमारी स्किल्स की अलाइनमेंट। और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, इट विल गेट इवन मोर सटल एंड सटल एंड सटल, एंड देन वी विल बी द कंप्लीट बीइंग व्हेन वी आर फुली अलाइंड टू आवर एग्जिस्टेंस, है ना? नेक्स्ट पेज। Then we discussed in the last session what is a sad success. I learned that there is a happy success when convenient, no, when we feel deeply peaceful, even if we have not gained many material things. जब हम डीपली पीसफुल फील करते हैं, जब हमारे पास कोई ज्यादा मटेरियल चीजें नहीं है, तब भी पीसफुल फील करते, दैट इज समवेयर हैप्पी सक्सेस। एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ सक्सेस when we have achieved a lot in life, money, name, fame, but still we often feel void inside and feel distressed.
मनी नेम फेम के अलावा भी बहुत सारे रीजन से हम लोग वॉइड फील करते हैं, जबकि हम हमारा नाम हो गया, सब कुछ हो गया, फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी बहुत अच्छी है, उसके बाद भी वॉइड फील करते हैं अगर, तो दैट इज बेसिकली अ सैड सक्सेस, स्टिल अ सैड सक्सेस, यानी कि अभी और कुछ और चाहिए हमें लाइफ में. While I am driven by success, I must be sure that what really success is for me. I hope I am not chasing sad success. तो इसके लिए एक अवेयरनेस हमें होनी चाहिए. नेक्स्ट पेज. उसके बाद हमने सीखा लास्ट सेक्शन में, वी इमिटेट सक्सेस ऑफ अदर्स. आई लर्न दैट सक्सेस इज डिफरेंट फॉर एनी एवरीवन. जस्ट लाइक एवरी ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एंड प्लेज अ डिफरेंट रोल इन अवर लाइफ. जैसे हमने बात किया था चेयर का, लैम्प का, स्टूल का, सबका अलग अलग रोल, अलग अलग फंक्शन है. सेम वे वी आर ऑल डिफरेंट एंड यूनिक, एंड अ यूनिक म्यूजिक विल कम आउट आउट ऑफ ईच वन ऑफ अस. हमारा सबका म्यूजिक अलग है. एवरीबडी सक्सेस इज डिफरेंट. सो हमें दूसरे की सक्सेस को देख करके उसको इमिटेट करने की हैबिट से बिल्कुल बाहर निकलना है. I usually get inspired from people around me and start setting their life standards, their strength in my life. This is wrong. I can't live their life and they can't live my life. We are all unique beings, and hence our success, our peace. Success means peaceful. Our peace is also unique. It should, किसी को किसी चीज में शांति मिलती है, किसी को किसी चीज में शांति मिलती है. हमारी शांति भी अलग अलग है, हमारी सक्सेस अलग है, हमारी शांति अलग है. क्योंकि सक्सेस को हमने बोला, वन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज बिकमिंग पीसफुल. सो इट शुड कम फ्रॉम विद सीइंग इनसाइड. हम अंदर ढूंढेंगे इसको एंड नॉट फ्रॉम आउटसाइड. आई नीड टू लर्न हाउ टू लिव अ लाइफ इनसाइड आउट एंड नॉट आउटसाइड इन. I need to build myself from inside and not try to imitate or copy others around me, copy people around me. सो ये एक और लर्निंग थी लास्ट सेशन की. इसकी रियलाइजेशन ये थी, आई फील सो एम्पावर्ड दैट आई हैव माय ओन स्ट्रेंथ्स रिजाइडिंग इनसाइड मी. वी कैन बी वेरी, वी कैन रियलाइज दैट so much of positivity can be realized, है ना, that that can make me unique from all the other people around me and can make me walk my life journey. I always felt that I have nothing special inside me. But today, I am getting the hope that there must be something special in me too. I just need to find it harder. ये भी तो रियलाइजेशन आ सकती है ना. हम लोग, सबको लगता है, मुझे तो लगता है कि कुछ है ही नहीं, है क्या, कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है जो डिफरेंट करती है मेरे को, मैं कुछ कैरी करके ही नहीं लेके आया. तो लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद या ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें ये, मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, अरे अगर थोड़ा सा डिग करेंगे तो हो सकता है मेरे अंदर भी कुछ मिल ही जाए. तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है. सो दिस इज अ रियलाइजेशन दैट, सो so I also thought of a transformation. I'll also go to an astrologist to understand from him what is my unique abilities. ये, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो एस्ट्रोलॉजिस्ट अगर राइट एस्ट्रोलॉजी जो जानता है, वो स्टार्स के साइंस से भी बता सकता है कि हाँ, हम सबकी कोर स्ट्रेंथ्स क्या है. और आयुर्वेदा के अंदर भी ऐसा बताते हैं. हमारे जो 3 दोष हैं उससे में बता देते हैं कि हाँ, ये तुम्हारा कोर स्ट्रेंथ रहेगा, बिकॉज आयुर्वेदा इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल साइंस. सो एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, इनके ऊपर भी हम जा करके पता कर सकते हैं व्हाट इज, आई थिंक. Kanupriya, would you like to share something? Like about astrology. Yes, you did. You have gone through this, right? Yes. So I felt that I was more creative, and when I went to the astrologer, she also said that according to my stars, I'm into more creative field. So yes, that's what she said, and she gave me some options that from this you can do something. I had 3 options, so I chose one of them which I felt कि मैं कर सकती हूँ उसमें. I felt more interest into it. So And did you feel more aligned to what she said and what your core strength, जो आपको अंदर से अपनी
यूनिक एबिलिटी लगती है? um, थोड़ा सा, बट नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ, बट यस, अ लिटिल बिट आई फेल्ट सो। ठीक है, तो वी कैन स्टिल गो ऑन बिकॉज दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ लाइफ। हम कई बार हमारे पेरेंट्स हमें किसी रास्ते पे निकाल देते हैं, लेकिन उनको जो सही लग रहा होता है वो कर रहे होते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता लगता हमारी यूनिक एबिलिटी क्या है। आई वाज टेलिंग टू समबडी यस्टरडे, इसको हमने 11 चीजों में ट्राई किया बिफोर ही गॉट इनटू बिजनेस। ही स्टार्टेड विद टेनिस एंड देन ही वेंट टू फिल्म मेकिंग, देन रिटेल शॉप एंड देन एजुकेशन व्हाट नॉट। तो अ, अच्छा है, ट्राई करके हमें पता लग जाता है कि हाँ ये मेरी यूनिक एबिलिटी है और ये नहीं है। सो यस, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि मैंने भी इससे पहले नोट्स नहीं बनाए थे ऐसे डीपली, मैंने लास्ट सेशन के फर्स्ट टाइम बनाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत डिफरेंट फील हो रहा है आज जब से ये नोट्स बने हैं। आई रियली, आई फील दैट आई फाउंड समथिंग इन दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइनमेंट कि I genuinely feel that am I really like a broken phone which all the parts are within me and they are just not aligned, and it's just a matter of alignment, and there is nobody in this world who can really, who has come to me and aligned me and who has even spoken to me on these lines. मेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति भी नहीं आया 50 साल में जिसने आके बोला हो कि तू मिस अलाइंड है, पूरा तेरे अंदर सब कुछ है लेकिन अलाइनमेंट नहीं है, और जैसे तू अलाइन हो जाएगा तू सुपरमैन, सुपर पावरफुल हो जाएगा। वाह, कभी कभी रियलाइज नहीं किया ये। हर वक्त यही लगता रहा कि व्हाट स्ट्रेंथ डू आई हैव, नथिंग मच। तो जो भी थोड़ी बहुत लगती थी उसके ऊपर अपनी लाइफ चला ली यहाँ तक। लेकिन एक बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील हो रहा है पिछले 2 दिन से, जब से वो लास्ट सेशन हुआ था और जब से मैंने ये बहुत डीपली अनुचिंतन किया इस बारे में। इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई रोट, इट्स मोर अबाउट व्हाट आई कॉन्टेम्पलेटेड, what I introspected on this whole concept of my own strengths and my relationships in the inner circle, and my alignment of my strength with my purpose and my time scheduling, all of that is looking like कि ये सब कुछ तो बहुत ही फ्रेगमेंटेड है अभी मेरी लाइफ में। तो लेकिन ये जब रियलाइज हुआ, जब बहुत डीपली कॉन्टेम्पलेट किया इसके ऊपर, इससे पहले नहीं हो रहा था। इससे पहले तो क्या था, एक क्लास है, क्लास ले ली, क्लास दे दी, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में ये नहीं, ये बोलना है बस। इससे नहीं होता, इससे कोई फायदा, मेरे तो कोई फायदा नहीं होता इसमें। आप लोगों को शायद मिल जाता, मेरे को, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों से भी ज्यादा फायदा मिले इसमें। तो तो आप लोगों को बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाउ टू टेक नॉलेज इज द बिगेस्ट नॉलेज, बिकॉज नो बडी नोज रियली। इसके ऊपर कोई कोई किताबें ही नहीं लिखी गई हैं, इसके ऊपर कोई टीचर्स ही नहीं बने हैं कि हाउ टू ड्रिंक नॉलेज, हाउ टू एब्जॉर्ब थिंग्स, हाउ टू मेक इट अ पीस ऑफ यू। तो ये की बात है हमारी लाइफ की। नो मैटर व्हाट वी, हाउ मेनी क्लासेस, हाउ मेनी सेशंस, हाउ मेनी स्पिरिचुअल, you know lectures we go through, it is only useful when we are drinking it. It's like a bottle, no, medicine की bottle प्रभुपाद जी कहते हैं ना, if we keep licking it from outside, it will have no effect in us. We have to open the ढक्कन and then we have to drink it. Only when it goes inside us, then it will function. Same with all the classes, all the sessions that we go through, unless and until we drink them. And there is a process to drinking knowledge. It is not just a word, it's not a nice phrase to have, drinking knowledge. कि अमरेंद्र प्रभु ने एक बार बोला था ड्रिंकिंग भागवतम, तो ये वहां से आ रहा है। लेकिन ये बहुत एकदम सही बात है। वी हैव टू नो द आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग द नॉलेज एंड देयर इज अ होल प्रोसेस टू इट। तो अगर अभी बहुत लंबी प्रोसेस, अनुचिंतन की मैंने कुछ क्लासेस पहले ली थी, तो उसमें तो बहुत लंबी प्रोसेस बना दी थी। 10
एक्रोनिम बहुत बड़ा बन गया, तो उसमें 10 चीजें करनी पड़ती थी, तो मुझे नहीं लगता कि हम 10 चीजें अभी कर पाएंगे। धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, अभी सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं। एल, एल फॉर लर्निंग, आर फॉर रियलाइजेशन एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स कीप इट स्मॉल, सिंपल अभी के लिए। अपने डीपेस्ट लर्निंग्स उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करके डीपेस्ट लर्निंग लिख लें, और फिर उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके उसको रियलाइज करें। रियलाइज करने का मतलब है, सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रियलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, अगर हम सबको ये पता लग जाए कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, अगर ये पता लग गया तो काम चल जाएगा, नॉलेज तो मिल गई। नाउ वी नो वी आर a soul and we are not this body. But if it is not realized, it is just a fake knowledge, or it is just one step towards that. Unless we realize this part, we have not gotten into self realization, है ना? तो रियलाइज करना ही सब कुछ है। रियलाइजेशन का मतलब होता है साक्षात हो जाना उससे, हमारा साक्षात्कार हो जाना। रियलाइज का मतलब बिल्कुल साक्षात हो गए, वी बिकम वन विद दैट। So this is what is important, to transform all our knowledge into realization. And that is the purpose of Anuchintan. Anuchintan is a process that transforms the knowledge into a realized knowledge. And once the knowledge is realized, then all our actions, all our decisions, all our thoughts are based on that realized knowledge. So if the quality of the knowledge is good, then quality of our decision is good. If the decisions are good, that means the actions are good. Actions are good, that means result is automatically good because the actions are good. So if we want to change the outcome of our life, we need to change the actions. How will the actions change? When we take the high quality decisions. How will the high quality decisions come? When we have the right knowledge, but not just the right knowledge, the right realized knowledge. Only then we will be inspired to take the decisions. So यही बात है जो हमें बहुत डीपली समझनी है, and I might keep sharing this with you in almost every single class, because this is the most important thing that I have realized in my life, that knowledge needs to be realized. There is nothing else which has come across in my life as more powerful tool than this. That nobody on this planet has taught you how to acquire knowledge. No one. And knowledge being the most important thing in our life. We are what we know. जितना हम जानते हैं उसी हिसाब से हम बिल्ड हो जाते हैं, उतने ही बिल्ड हैं हम। और लेकिन what we know is can be much more than that. If we realize the knowledge, we can be much more knowledgeable than what we are currently. So much of time just goes in acquiring knowledge but without realizing. हम ले रहे हैं लेकिन उसको realize नहीं कर रहे। तो इसलिए let's make sure that not just this Wings Academy, but whatever we do in our life, we live a very condensed life, deep thinking. Always go deep, inch wide, mile deep. हमेशा एक कॉन्सेप्ट को पकड़ा, इंच वाइड, होल कितना 1 इंच का है बस, लेकिन डीप कितना है, 1 माइल डीप गए उसके अंदर। एक ही चीज को लेके उसके ऊपर चिंतन 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 करके उसको पूरा अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया। So this is the way we can be very successful, which means peaceful. Nipun Prabhu, you have something to share? Uh, it's related to what we were discussing in the beginning. So if you want to continue the flow, Prabhuji, then we can take later. I'm almost done. Time is also over. You can tell me. Prabhuji, which we shared the achiever mindset, Hmm. is it a quality or is it like
I would say disquality, because the person will always feel unsatisfied, always feel tired. I need to achieve this every second. So this is the extreme mode of passion. ये रजोगुण का सिम्टम है। तो ये अच्छा और बुरा नहीं है। अच्छा और बुरा वो है जहां हम उसको लगाते हैं। रजोगुण अच्छी जगह भी लग सकता है। रावण भी रजोगुण में थे और अर्जुन भी रजोगुण में थे, है ना। तो दोनों ने अपने अपने रजस को अलग अलग जगह लगाया। तो इट डिपेंड्स ऑन हम उसको कहाँ यूज करते हैं। तो अगर हम अब एक साधु भी होता है रजस में, कैसे उसको भगवान को पाने की लगता है, अरे 1 घंटा वेस्ट हो गया, 1 घंटा वेस्ट हो गया, 1 मिनट वेस्ट हो गया। कितनी सारी कहानी हमने सुनी है ऐसी ना। तो दे ऑल्सो वांट टू अचीव, बट व्हाट दे वांट टू अचीव इज गॉड, गॉड कॉन्शियसनेस, भक्ति। तो दे ऑल्सो वांट टू अचीव। सो नथिंग इज रॉन्ग और राइट, इट्स ओनली द वाई, द पर्पस इज रॉन्ग और राइट। तो ये तो हमारे गुण हैं, ये तो हमारे पीछे से चल के आए ही हैं, सबके साथ में आए हैं। यस सान्या। हे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, लाइक हमें पता चला कि वी हैव अ यूनिक एबिलिटी, बट इट इज व्हाट इज हैपनिंग विद मी राइट नाउ इज कि मैं बहुत इम्पेशेंट हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे कब पता लगेगा वो, क्या करूँ उसको अचीव करने के लिए। सो व्हाट कैन आई डू? यू आर एन अचीवर। ये तो पता लग गया। ऑलरेडी पता लग गया आपको, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। तो आपको एक अपनी एक क्वालिटी तो पता लगी कि यू यू आर इम्पेशेंट अचीवर। आपके अंदर जो भी अचीवर होते हैं ना, पेशेंस नहीं होती, उसको लगता है कि जल्दी से अचीव कर लो, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है ना। तो तो दिस इज वन थिंग दैट यू ऑलरेडी नो ऑफ योरसेल्फ टुडे। But I feel I'm not putting any effort on that. So, Yes, this is the situation of more than 8 billion people on this planet today. They don't know what is their strength, that they are totally disaligned. Nobody knows their strengths really. Very, very few people are working on their strengths. तो कोई बात नहीं, उनमें से ही आप एक हो, मैं भी उसी में से हूँ, आपके साथ ही हूँ मैं। तो मिलके ढूंढ लेंगे। थोड़ी सी पेशेंस रखो। and यस, also one more question I have, if you allow. अब गो। लाइक आपने बोला कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट इट हैपेंस कि जब हम किसी से कंपेयर करते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि वी शुड आल्सो डू दैट, स्टार्ट डूइंग दैट, अगर हम नहीं कर रहे तो। आप उसके स्पिरिट से, उसकी जो स्पिरिट है ना कुछ करने की, उस स्पिरिट को आप अपने पास लेके इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन स्किल को नहीं। व्हाट इट मीन्स इज स्किल्स सबकी अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधिका बहुत अच्छा कीर्तन करती है, हाँ। द स्पिरिट एट विच शी डज कीर्तन, दैट वी कैन टेक, बट नॉट द स्किल ऑफ कीर्तन। दैट इज समथिंग विच इज अ गिफ्ट ऑफ राधिका। यू हैव योर गिफ्ट, शी हैज हर गिफ्ट। तो हम स्किल्स को ना लें, लेकिन उनकी स्पिरिट को ले सकते हैं। यस राधिका। Thank you so much, Ruji, for this wonderful session. I really loved it. Two things that came to mind. First one, when we were discussing that what is the difference between an achiever and an activator, I felt that an achiever would also think before taking any action. So if they want to achieve something, they will say, okay, this time is for learning. And this is on my checklist that yes, I spent 1 hour on learning what I'm going to do. And if an activator does this, then they will just say, okay, I should not spend time on learning. I should just do it. So can we interpret that as the difference? Yes, it is very much. So, activator is always into action. He doesn't believe in thinking, learning. He acts and then he learns from the action. His learning is coming from the action, as we read. He will do the action, he will see the result, outcome क्या आया, उससे learn किया, फिर उस पे action कर दिया, change कर दिया अपना action. While the achiever, he wants to achieve, and he could be a very thorough, deep thinker, strategist. He wants to achieve something. He need not to be the fast activator कि एकदम से action पे लग गया. He would have a good plan
He wants to achieve a bigger plan. So that is a perfect difference. Yes. And the second thing I realized was that every strength can become your weakness at some point. So all the strengths that we are going to discuss, I feel are going to become our weaknesses as well. So that was the point which made me think that no, we are not perfect beings who can do everything perfectly. So we need to go with the flow rather than curse ourselves for not doing everything properly. That's it. So Thank you so much. I'm not sure whether the strengths can become weakness. They can just maybe be just hidden. These strengths are not something that we have developed in last few years. What we are trying to find out are the strengths that we have carried with us. ये हमारा स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, लेके आए हम साथ में अपने। उस स्वभाव को, उस स्ट्रेंथ्स को हम हमने अभी बचपन में डेवलप नहीं किया, हम लेके ही आए, तो हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो वो स्ट्रेंथ तो हमारी स्ट्रेंथ ही रहेगी। मे बी हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, इसके लिए कुछ टाइम के लिए वो आगे नहीं आ पा रही है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आ जाएगी। एनीवन एल्स? एवरीवन गुड? ओके देन, थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा।